हाय गाइस। तो मैं आज आप सबको मैं अपनी अपनी कोडिंग क्लास में लेके जाने वाला हूँ। तो देखते हैं हमारी कोडिंग क्लास का सफर कैसा रहता है। तो चलते हैं अब हमारी कोडिंग क्लास में। तो और वीडियो को हम स्टार्ट करते Okay, fine. Let us just begin now. I just don't want to waste your time, guys. So I'm just starting now. Okay. First हैं। of all, ओके just मैम। confirm if you can see my screen. Okay. And Swastik, can you see my screen? नो मैम, देयर इज रिटन टूडेज लीडो क्लास स्टाइलिंग विद सीएसएस। Yeah. Okay, fine. So both of you can see it. Fine. So today, in the previous classes, we just studied the basic structure, the HTML, how to create the contents of a website. But today we are just gonna add some more style and life to our web pages. Okay. Yeah. पिछली बार क्या स्टाइल किया था? It was simple. It was just a simple website. Today we are just gonna add some more styling attributes to it. Pardon? No. Coding has got so many things. It has got so many things to do with, not just the styling. Styling is one of the applications. Fine, guys, just do this one. Rearrange the codes to get the following output. Now the output is like something with inside a table. Lido, learning, coding, champions. Fine, this way you have to arrange it. You just have to rearrange this code. Hi Nika. Time's up. Were you able to do it? It was a bit lengthy of a question, but were you able to do it? Okay, and Swastik, were you able to do it? मैम, my is reading wrong answer. Ma'am, I have done that. Okay, no problem. Just try out this next question. Nika, are you there? Nika? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Welcome, Nika, welcome. Okay, so I'm just providing you with this Good another afternoon, question, ma'am. and this is just good afternoon, dear. This is just for the revision's sake. Just do it. Now this was the answer. This was the answer. Now this is the question. You have to make a list which says mathematics, English, coding, and science. Which one is correct? This one is quite simple. Ma'am, the answer is second option. Done? Ah, yeah. The second one was the answer. Yeah, I hope every and this was such a silly mistake. I just cannot believe that the technical team did this. Like this was the mistake. I mean anybody, even a kid would identify that there is something wrong with this. Okay, great. Next question. No, no question. Finished.
So this is something that we did in the last class. We made this. If you guys remember how we did it, we made a table and then we added some header files, header to it. Then we added table row. Then we added table data, and everything went like that. Okay, and also we made this, something like this. You remember Yes, we ma'am. took input in these boxes. Okay, and these were the buttons for order now and for cancelling the order. So these were the buttons. So this is all we did in the last class. So today we are just gonna change that page a bit like this. We are gonna change the background color. We are gonna change the color of the header files, and we are gonna change the. Can you see these dotted lines outside the table? These dotted lines. Yes, ma'am. Yeah, we are going to add these dotted lines, and we are going to change the color of these headers. Like whenever you hover over something, you must have noticed कभी किसी चीज के ऊपर अपना माउस लेके जाते हैं ना, उसको होवर करना कहते हैं, तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं कि अपना कलर चेंज किया या फिर थोड़ा हाईलाइट होके सामने आ गया. तो ये सब चीजें CSS में इन्वॉल्व होती है. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दीज थिंग्स. Okay, and that order wala page will look like this. So I think the second option is much better than that before. Yes, ma'am. Yeah, and if you like that one, then we won't learn CSS then. Okay, so first of all, let anybody remember the full form of HTML? Hypermarket language. Again, Nika remembers. I know Nika, you told me in the first class markup also. language. Hypertext markup language. Sastik is saying market language. Oh my God. Ma'am, markup. Okay, Nihika. Now I know. And Nihika knows. And Shaurya, do you remember the full form of HTML? Because I know the other two remember. Shastik and Nihika remember. But I have a doubt on you. Shaurya remembers only the first two words. Now Nihika will tell everybody. Yes, Nihika. Ma'am, hypertext markup language. Yes, hypertext markup language. And how can you forget this word markup? That is the backbone of HTML, because everything is marked inside the tags. How can you just forget that, Shaurya? Okay, thank you, Nika. So let us just start. Okay, now full form of CSS. Everybody just remember this. This is cascading style sheets. Cascade means one inside the other or one after the other. So you'll get to know that later on what does cascading actually means. But this is just for the styling and giving a new look to your website. Okay, now let us just learn how to apply the CSS. Before that, let us just learn what are the benefits of CSS. It helps us to make a simple HTML website look much better by offering different CSS styles and properties. The second thing, it helps us to work on multiple web pages together. Means we can just change each and every web page by just linking it to one CSS file. Okay, हमें क्या करना होगा ना, CSS के लिए एक अलग से फाइल बनानी पड़ेगी. Style.css. If you see on your repel.it, there is on the left hand side there is one file, style.css. Right? उसमें जाके एक नई फाइल बनाएंगे और उस वाली फाइल का लिंक हम अपने वेबसाइट में डाल देंगे. Okay, ma'am. या और उसके बाद जो भी हमने CSS में करने को बोला है, एवरीथिंग विल हैपन विद इन द वेबसाइट. हमें हर वेब पेज के लिए अलग अलग करने की जरूरत नहीं है. फाइन, यस, ग्रेट. तो ये थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा. Other thing, CSS helps us to define the design and layout of website on different device screens. अभी लैपटॉप है, लैपटॉप पे कोई वेबसाइट खोलेंगे so it will look in some other orientation. वही वेबसाइट अगर मोबाइल पे खोलेंगे तो it will look in some other orientation. टैबलेट पे खोलेंगे थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा दिखाना पड़ेगा. अगर मोबाइल को ही ऑटो रोटेट करेंगे then it will look in some other orientation. राइट? सो ये सारी चीजें HTML कंट्रोल नहीं कर सकता.
CSS has to control all those things. Okay. Yeah, so this is the another advantage of CSS. Now the basic difference between CSS and HTML, you guys already know. If somebody could read out this for me, Swastik, would you read out the HTML part for me? HTML is Yeah, all please read about out. deciding the content of the website. It defines what will be on the website. Yeah, it decides the what will be on the website कि हमारी वेबसाइट पे क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, वो सब तो HTML ने कर दिया, वो सब हम सीख चुके हैं. CSS क्या करेगा? शौर्या, read out. CSS is all about deciding how the content of website will be displayed. Yes, अब वो कंटेंट हमने दे तो दिया, लिख दिया, बस वहां पे रख दिया, उसको डिस्प्ले कैसे कराना एक फैंसी मैनर में, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय CSS. Fine. So everybody is logged inside the repel.it accounts, I wish. Yes, ma'am. Great. Now open up your project that we created in the last class. Okay, great. Come to the classroom now. Are you in the classroom? Yes. Yes, ma'am. Okay, great. Now just tell me, दो अलग अलग फाइल्स हैं, ये दो अलग अलग पेजेस हैं, उन दोनों को लिंक कैसे किया जाता है? अरे भैया, इतना मुश्किल सवाल नहीं है, जस्ट टेल मी, दोनों को लिंक कैसे करते हैं? नो, एक्चुअली yes, anchor tag can be used. And what else? मैम लिखा है. Yes, yes, link tag. अगर एक फाइल को दूसरे फाइल से कनेक्ट करना है, लिंक करना है, तो सिंपल सी बात है, we will be using a link tag. और लिंक टैग का एक एस्पेक्ट होता है हाइपर रेफरेंस, जो कि हमने एंकर टैग के साथ भी यूज किया था. हाइपर रेफरेंस में हम वो वैल्यू डालते हैं, उस फाइल का नाम डालते हैं जिसको कनेक्ट करना है. ठीक है. दूसरा, इसका रिलेशन क्या है इस फाइल के साथ? मान लेते हैं कि हम किसी HTML फाइल के अंदर जाके CSS वाली फाइल का लिंक डाल रहे हैं. ठीक है, तो जब भी वो HTML वाला कोड रन होगा तो वो CSS को भी अपने साथ इंक्लूड कर ले. तो उस HTML फाइल का रिलेशन बताना पड़ेगा हमें CSS वाली फाइल के साथ. ठीक है, तो रिलेशन में यू विल ऑलवेज पुट स्टाइल शीट, दैट दिस पर्टिकुलर शीट इज फॉर स्टाइलिंग. ये रिलेशन हो जाता है. The other thing we have to define is type. इस फाइल का टाइप क्या है? तो फाइल का टाइप या तो टेक्स्ट फाइल होगी या CSS फाइल होगी. इन दिस पर्टिकुलर केस वी आर यूजिंग द CSS फाइल, तो हम CSS लिखेंगे. Fine. This is the basic, basic linking structure that we use in our HTML web page or the HTML website to link it to the other CSS file. Okay, now let us just implement this particular thing inside our code. So everybody just open up your index.html home page, Lido Pizza wala home page. Okay, once you are done with it, who will tell me हम सारे लिंक्स को हेड के अंदर डालते हैं कि बॉडी के अंदर डालते हैं? मैम हेड. Okay, I've got one answer. Other two, Shaurya and Nika, you have to answer. हेड में डालेंगे या बॉडी में डालेंगे? Shaurya, what are you doing? Are you playing PUBG? Then what are you doing with so much of concentration? I don't think that you're in the class. You're doing something else. Oh my god. I just feel like beating you. Okay, Nika wants to answer. Okay, great. I have got two answers. Shaurya, now it's your turn. Link कहाँ रखेंगे? हेड के अंदर के बॉडी के अंदर?
हेड के अंदर रखे जाते हैं लिंक सारे. इफ यू रिमेम्बर, हम लोग जब गूगल फॉन्ट वाला लिंक लेके आए थे, हमने कहाँ पेस्ट किया था लाके? हेड के अंदर. फाइन. जब जब हम लोग ने रेफरेंसेस दिए थे दूसरे फाइल्स के, तो वो सब हमने हेड के अंदर डाले थे. या ओके, नो प्रॉब्लम, आज के बाद नहीं भूलोगे. सो द सेम वे, ये जो आपको कोड अभी दिखाया था, लिंक href इज इक्वल टू style.css, ये पूरा का पूरा लिंक एज इट इज क्लासरूम से देख के अपने बॉडी के अंदर लिख दो. वहां पे ऑलरेडी जितने लिंक्स दिए हुए उसके नीचे से कंटिन्यू करके. मैम डन. Swastik has done great. Nika has done. And Shaurya, what will you do now if you don't have the code? Okay, now I believe you. I believe you that you must have got disconnected by yourself, right? Now I believe you. Okay, that is so good to hear that you will write it down yourself. For now, you can just copy down these basic structures on I'm your. doing the same thing. Yeah, okay, great. But don't take too long. ओके तो अब इससे हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ style.css नाम की फाइल है जो ऑलरेडी बनी हुई है, उसके अंदर अभी कुछ लिखा नहीं है हमने, अभी लिखेंगे. उस फाइल को हमने अपने HTML होम पेज से कनेक्ट कर दिया. अब हम style.css में जो भी चेंजेस लाएंगे, एवरी चेंज विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन आवर वेबसाइट ऑटोमेटिकली. हर पेज पे जाएगा क्योंकि हम होम पेज से उसको कनेक्ट कर चुके हैं. फाइन. नाउ लेट अस जस्ट चेंज सम एट्रीब्यूट्स. उससे पहले जस्ट लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ कलर्स. अच्छा, विच कलर इज दिस, स्वास्तिक? मैम ब्लू एंड ग्रीन आर देयर. ना, only the first one. Blue. Blue, great. And Shaurya, which color is this? Yeah, darker blue, great. And Nika, which color is this? This is Can you see this color palette written on the top side? Just Yes, click on ma'am. that. It will redirect you to some other tab. वहां पे जाके you will get some 3 meters RGB, red, green, blue. उनको ना स्लाइड करने की कोशिश करो. You will see some codes are changing. Black है तो everything will remain 0. But as you start changing the colors, you start giving different shades, the code is also changing. So you can select any desired color और वहां से देखो कि उसका कोड कौन सा है. Yes, ma'am. Yeah. Okay, now also you know कि यहाँ पे बस 3 ही कलर्स क्यों है, रेड, ग्रीन और ब्लू, क्योंकि इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कोई भी कलर बन सकता है. So that is why computer only understands these 3 colors, red, green and blue. Rest is up to us, हम कैसे combine करके कौन सा नया कलर बना रहे हैं. Okay, so now you know कि ये काम कैसे करता है. Fine. So from here you can get to know the codes of any color. Yes. Right? Yes, great. So for example, we want this particular color in our background. So for the code for this is hashtag D7D0F2. Yes, ma'am. Yeah, so we will be using this particular code, and also guys, if you want to use any other color, you can do that also. But I'll be using this particular thing because entire slides contains this color. Okay. अभी बात करते हैं CSS की. When we start writing our CSS project, the CSS file, then what we will do? Changes कहाँ करने हैं? वेबसाइट के हेड में कि वेबसाइट की बॉडी में? Ma'am, in the body. Yeah, I've got one answer from Swastik. Great.
and Nika, where do we do all the changes? स्टाइलिंग कहाँ करेंगे, हेड में करेंगे कि बॉडी में करेंगे? Body. बॉडी, ग्रेट. शौर्य कहाँ करेंगे स्टाइलिंग? बॉडी, ग्रेट. तो अभी क्या करते हैं, छोटा सा स्ट्रक्चर समझते हैं. जब हम CSS फाइल लिखना स्टार्ट करेंगे, सो वी विल गिव दिस पर्टिकुलर थिंग कि बॉडी में चेंज करना है, और इन ब्रैकेट्स के अंदर हम सारे एट्रीब्यूट्स लिख देंगे कि क्या क्या चेंज करना है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू चेंज द कलर टू ब्लू, so I'll write down color, colon blue. Fine. Also, if I want to change the font size, then I'll write font size to 16 pixel. Fine. And remember, these semicolons are a must after after you write every aspect. The same way you can add so many aspects. Okay. Okay, ma'am. Yeah, so in starting you give the HTML element जहाँ भी आपको styling करनी है, and here you give all the aspects. You declare your aspects. Fine. Okay, ma'am. Great. Now everybody just go to a style.css file. सबसे लास्ट में जाके देखना, there is a file style.css. Open up that file. कुछ है तो delete it, कुछ नहीं है तो well and good. And first thing that we are doing is we are changing the background color in the body. So body के अंदर declare background color to that particular color which is of your choice. उस color का code लिख देना है वहाँ पे. और ऐसा नहीं है कि अगर रेड, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, पर्पल आप कुछ लिखेंगे तो इट विल नॉट एक्सेप्ट दैट कलर, उसको भी एक्सेप्ट करेगा. बट वी जस्ट वांट टू बी वेरी मच प्रिसाइज एंड वी वांट डिफरेंट शेड्स. तो शेड्स डिफाइन करने के लिए हमें कोड्स ही यूज करने पड़ेंगे. मैम डन. ग्रेट. स्वास्तिक हैज डन. Done, Nika? Done, Shaurya? Okay, done. Shaurya, done? अब वो पुराने वाला कोड लिखने मत बैठ जाना. कॉपी कर रहा हूँ बस. ओके मैम. Okay. Okay. Abhi, if you run your code, so you will find out the background color has been changed like this. If it doesn't work, just try to refresh the output window also. Okay, now let us just add some more things to it. But before we proceed, I already told you that website is a collection of web pages. है ना, हमारी जो लीडो पिज्जा वाली पूरी वेबसाइट है, it has got so many web pages. It has got a home page, it has got a deals page, it has got a orders page. Fine. So a website is a collection of web pages. So when a change is made to one particular web page and it is applicable to all the web pages, जैसा कि अभी हो रहा है कि हमने सिर्फ index.html जो हमारा होम पेज था सिर्फ उसमें चेंजेस किए थे. CSS फाइल को हमने वहीं लिंक किया ना, और किसी पेज में तो लिंक नहीं किया. But the changes are happening throughout the website. अब आप कोई भी वेब पेज खोलेंगे तो हर एक पेज में ये सारे चेंजेस आएंगे जो हम उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं. नो मैम, नहीं आ रहे? इट्स नॉट देयर. सिर्फ एक वेबसाइट में आ रहा है, मतलब एक Yes. पेज में आ रहा है. यस मैम. नॉट पॉसिबल. मैम इट इज शोइंग दैट वन. होम पेज में ही तुमने किया है ना, किसी और में तो जाके नहीं कर दिया. नो मैम. होम पेज में index.html. यस मैम. ओके, पता नहीं, इसलिए आई डोंट learn rebel.it. Are you guys using Sublime? Acha, so you will take some time to get used to it. Someday if I get time, I'll show you how Sublime works. It is just a miraculous platform. I'll show you. Okay, for now just understand the concept. अगर ऐसा कभी होता है कि हम एक वेब पेज में CSS को इंक्लूड करा के
पूरे वेबसाइट पे चेंजेस कर पा रहे हैं, देन इट इज नोन एज एक्सटर्नल CSS। ठीक, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फाइल की हेल्प से हम उस पर्टिकुलर वेब पेज में चेंजेस ला रहे हैं। फाइन। तो इसको क्या बोलेंगे हम, कौन सा CSS? टेबल CSS, एक्सटर्नल एक्सटर्नल या CSS। हाँ, तो अभी जो हम कर रहे हैं ये एक्सटर्नल CSS के लिए कोडिंग कर रहे हैं, जो हम style.css में पूरी कोडिंग कर रहे हैं, दिस इज फॉर द एक्सटर्नल CSS। फाइन। So now let us just change something within the table. So you will write down table, और टेबल के अंदर जब डिक्लेरेशन देंगे देन यू विल राइट डाउन बॉर्डर कोलैप्स। ठीक है, जस्ट कम एंड हैव अ लुक एट द क्लासरूम। बॉर्डर कोलैप्स, कोलैप्स होने का मतलब क्या होता है? टू फिनिश समथिंग और टू मर्ज समथिंग इनटू अनदर। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि बॉर्डर को खत्म कर रहे हैं। पहले हमने डिफाइन किया था ना, साइज ऑफ द बॉर्डर इक्वल टू 1, तो थोड़ा सा बॉर्डर वहां पे विजिबल था, बट नाउ इफ वी आर कोलैप्सिंग द बॉर्डर इट मींस द बॉर्डर विल go away. The next thing that we are deciding is the height and width of the table. And once we are done declaring all the attributes of the table, we'll just close it. मैम डन, मैम डन। Done, done. Nika done, Swastik done, Shaurya, where's your thumbs up? Okay, great. And before I proceed, I just want to appreciate Swastik. I asked him that I promised him actually that I'll write his code. So I wrote it, but not completely, right? I just left out the main sections, and he did it did everything himself. After all, great job. Okay, moving on to the next thing. Now you see some alterations in your table. Something like this: a border has become like very much thinner. Okay, now the border is not set to 1, the border has become very much thinner. The other thing we did was setting up the height and width of the table that we have set accordingly. Okay, now the next thing that we are doing is changing the header of this table. Fine, header की height I want to be 50 pixels and font size I want to be 30 pixels and color I want it to be red or any other color, whatever you like. Swastik done. Nika done. Waiting for Shaurya. Okay, great. Okay, now we have got Kritika with us. Okay, now this is something your web page should look like now.
what we did right now, I just forgot what we did. We set the height of the header and we set the font size and we set the color. Fine. So now you know that the color has been changed to something like red. Yes, Kritika, how are you? I'm fine. Okay, great. So thank you for joining in. I just thought that you will remain absent for today, but thank you. Ma'am, there is some network problem. Okay, I understand, no problem. But I just appreciate your efforts that you joined in the class. Okay, so who will just summarize what we were doing in the class? Just tell Kritika. Okay, we have got a volunteer with us. It is Swastik. Okay, then Swastik will just tell us. Swastik, be loud and clear. Yeah, Kritika, listen to Ma'am, we have Swastik. set the style.css and give the link to the style.css to our main page, and we have changed the style CSS body and background color of the body, and in table we have changed border collapse, height and width, and in the th tag we have changed height, font size and color. Okay, thank you, Swastik. But I know, Kritika, you didn't understand it so clearly, right? Yeah, I know. Yeah, so who else will try? Okay, I'll do that for you. I'll just explain you in detail. So, Kritika, until we were doing the HTML till the last term, we were just basically designing the contents of the website, but we just want to style it also. Okay, for styling purpose, we are using other language, that is CSS. And CSS is nothing different from the HTML. The syntax and all remains the almost the same. It is very easy to learn. I'll show you how to do it the last slide. Now, this is the entire CSS file that we have done till now. So what you can do, you can go to the style.css. Inside your FL.it account, you will find the last file which names style.css. Go there and write down this entire code over there. Fine. So let me just explain you quickly. Here we write down the HTML tag into which we want to edit. For example, I wanted to edit inside the body the background color. So I'll declare that I want to change my background color to this particular code. Now this code is nothing but just the code of a color. Fine, and you do not have to remember this code. You will get it. It is auto saved in the computer, but you just have to you just have to use this particular thing which I told these guys. You can just open the link from here. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, here's the link. Can you see the color palette written on the top side? Yeah, you can click on this color palette and it will help you to choose the code. There are some sliders, red, green and blue. You can slide them. You can choose a color and you can see the code beneath it. Okay, Kritika, done with this? Just open it up in a new tab and this will look something like this. तो यहाँ से स्लाइडर को आप स्लाइड करो, कलर चेंज करोगे तो जो कलर पसंद आए वहां पे जाके रुक जाओ एंड देन चेक फॉर दिस कोड कि नीचे में कोड क्या बन रहा है. फाइन, तो याद करने की जरूरत नहीं, यू कैन नो इट फ्रॉम हियर. फाइन, देन okay, I just told them about the external CSS. CSS होता है cascading style sheet, जो अभी हम कर रहे हैं ना. HTML में कंटेंट तो लिख लिया, लेकिन उसको और ज्यादा फैंसी, उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए CSS यूज करते हैं, दैट इज cascading style sheet. फाइन. अच्छा, कभी ऐसा हो कि एक वेब पेज में हमने CSS इंक्लूड करा दिया, CSS को HTML वाले फाइल में नहीं लिख सकते, इट इज अ डिफरेंट लैंग्वेज. तो इसके लिए अलग से फाइल बनाएंगे जो कि अभी खोली है आपने style.css, राइट. उस फाइल के अंदर जो भी कोड लिखेंगे आप उसको HTML में कैसे लेके आए, हम कैसे उसको अपने वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कर दें. तो उसके लिए हम उसे लिंक करेंगे ना, HTML वाली और CSS फाइल को लिंक करेंगे आपस में. उसके लिए हम लिंक का यूज करेंगे. तो अपने होम पेज में हेड के अंदर, बॉडी के अंदर तो लिंक्स नहीं देते, हेड के अंदर जाके लिंक देंगे. लिंक href इज इक्वल टू अपने फाइल का नाम डाल के लिंक देंगे पूरा. फाइन, अब ये दोनों फाइल्स कनेक्ट हो जाएंगी. उसके बाद वट एवर चेंजेस यू आर मेकिंग ऑन द CSS वाली फाइल, आप बोल रहे हो कि बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो या
टेबल का हाइट चेंज कर दो या विड्थ चेंज कर दो, एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड ऑन ईच एंड एवरी वेब पेज। पूरे वेबसाइट पे वो चीज रिफ्लेक्ट होती जाएगी। सो दिस इज नोन एज एक्सटर्नल सीएसएस, कि किसी एक्सटर्नल फाइल की हेल्प से, किसी बाहरी फाइल की हेल्प से वी आर जस्ट चेंजिंग एवरीथिंग इनसाइड द वेबसाइट। ओके, लेट मी जस्ट प्रोवाइड यू द पर्टिकुलर थिंग जो आपको वहां पे लिखनी है HTML के अंदर। दिस इज द कोड। index.html में जाओ, वहां पे लिंक दे दो हेड के अंदर, लिंक href equal to style.css. The next thing is relation rel. फाइन, दिस इज द रिलेशन कि इसका HTML फाइल से क्या रिलेशन है जो आप नई फाइल इंक्लूड कराना चाहते हो। सो इट इज बेसिकली स्टाइल शीट, स्टाइलिंग के लिए हम यूज करा रहे हैं। देन द टाइप इज द CSS। ठीक है, फाइल टाइप इज text/CSS। फाइन, ये पर्टिकुलर लिंक आप उसके अंदर इंक्लूड करा दो। सो व्हाट विल हैपन कि CSS और HTML कनेक्ट हो जाएंगे एंड देन you will be able to change the appearance of your HTML website. Let me know once you are done. बिठाने के लिए तो कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। Done, Kritika? Okay, great. अभी CSS वाले फाइल में जाओ, style.css, और वहां पे जाके you have to add this thing. Wait, I'm just coming. यहाँ पे पहले वाले कोड से बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, दूसरे वाले से टेबल के स्पेसिफिकेशंस चेंज हो रहे हैं, एंड द लास्ट वन टेबल का हेडर में हमने हाइट का, फॉन्ट साइज और कलर का चेंज किया। Be a little bit quick, Kritika. Everybody is waiting for you. Okay. All the Nika has got a bed for us. I just have to show it to everybody. Which breed is it, Nika? Which is a dog? Ma'am, a dog. A dog. Yes. Hey doggy, what's his name? Ma'am, Scrappy. No, I'm not getting it. 1 second. Ma'am, his name is Scrappy. I'm not getting the name. Hello, 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 hello. If anybody can hear me.
Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. Nadi Yeah, is everybody there now? Yes, ma'am. Okay, I'm so sorry, it just went off. Crappy, okay. Happy. Scrappy. Yes, ma'am. Okay, great. Which breed? Ma'am, he's a mix of Labra and Kanni. Lebrand? Kanni. Ma'am, it's a South Indian breed. Okay. And ma'am, my like other dog name is Kubi. Like we have got two. Oh, you have two dogs. Yes, ma'am. My God. Such a great time you're having. Yes, ma'am. Kritika done. Ashwarya, I know you have done it. I'm asking Kritika. Kritika, are you done? Kritika has got this specialty. She won't speak until she's done. Okay, done. Great. Fine. Now it should look something like this. Now just add some more attributes to it. Now we can also add two like the attributes for two different tags. For example, I have done it. Hello, is my voice not audible? No, Swasti. Everybody can hear me. Kritika, you can just check your network. Okay, so as I have done here, unordered list और ordered list. मुझे दोनों का टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट ही करना था, तो अब मैंने दोनों को अलग अलग करने की बजाय एक साथ कर लिया कॉमा डाल के. दैट इज सिंपल. अगर मुझे किन्हीं दो टैग्स के लिए एक ही चीज करनी है ना, तो आई कैन डू इट टुगेदर. फाइन. सो आई एम जस्ट व्हाट आई एम डूइंग. अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट जो हमने बनाई थी, वी आर जस्ट सेटिंग इट्स अलाइनमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट. Swastika has done it. Great. Nika has done it. Great. कृतिका, अभी तक आपने देखा ना कि हम लोग एक एक टैग के लिए यूज कर रहे थे. एक बार बॉडी के लिए किया, एक बार टेबल के लिए किया. एंड में देखो 9 नंबर 15 वी हैव यूज्ड इट फॉर अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट दोनों के लिए. ठीक है, क्योंकि मुझे दोनों का अलाइनमेंट लेफ्ट में करना था. अब मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखा और उसके लिए टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट डिक्लेयर किया, फिर ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए लिखा, दोबारा वही किया. तो इससे बेटर है कि मैंने दोनों को एक जगह कर लिया. तो CSS ये काम भी करने अलाउ करता है कि अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट दोनों का आप एक साथ लिख सकते हैं. डन कृतिका? ग्रेट. ओके, नाउ यू सी ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट जितने भी लिस्ट हमने बनाए थे टेबल में, वो सबके सब लेफ्ट में शिफ्ट हो गए. अब लेफ्ट से स्टार्ट होंगे लिखने. पहले सेंटर में आए थे ना कि नंबर इधर था और थोड़ा स्पेस छोड़ने के बाद वो कंटेंट बाद में लिखा हुआ था. अब मैंने उन सबको एक साइड में शिफ्ट कर दिया. सो नाउ इट इज लुकिंग मच बेटर. ओके, नेक्स्ट थिंग आई एम गोना डू इज, मुझे टेबल पूरी की पूरी टेबल का हेडर और टेबल का डेटा हर एक सेल सबका बॉर्डर 20 पिक्सल सेट करना है.
फाइन, एंड दैट टू अ डैश्ड बॉर्डर। डैश्ड बॉर्डर का मतलब होता है जिसमें ऐसे लाइनिंग्स होती हैं, ऐसा 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 वाला बॉर्डर, फाइन। तो उसे हम डैश्ड बॉर्डर बोलेंगे, एंड दैट टू इन अ ब्लैक कलर। तो ये सारी चीजें वहां पे लिखी। प्लस पैडिंग। पैडिंग क्या होता है, अगर ये एक सेल है, ठीक है, और इसके सराउंडेड ये टेबल होगी पूरी, तो ये जो डिफरेंस रहेगा बॉर्डर के और सेल के बीच में, इट इज नोन एज पैडिंग। फाइन। सो पैडिंग को मैंने हर जगह 20 पिक्सल सेट कर दिया, ताकि जो टेबल है पूरा वो थोड़ा ज्यादा सिमेट्रिक लगे। शौर्या, you understood what is padding? Okay. Padding is the space between the border and the cell. जहां से सेल शुरू होता है और जहां पे बॉर्डर शुरू होता है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गैप रहेगा ना, इस पूरे डिस्टेंस को हम पैडिंग बोलते हैं। फाइन, तो मैंने डिस्टेंस सेट कर दिया वो 20 पिक्सल्स। Okay, so Astika has done it. Any doubts still here? अभी तक तो सब आसान चल रहा है, कुछ समझने की जरूरत ही नहीं, एकदम क्लियर क्लियर, छोटा छोटा। यस, Shaurya, you must come to the class. Okay, padding, yeah. देखो बेटा नीगा, and explaining. ये मेरी टेबल है, फाइन, इतना गंदा, और इसके अंदर मैंने कुछ डेटा लिखा होगा ऐसे सेल्स की फॉर्म में, ऐसा ऐसा करके, है ना। तो ये जो गैप होता है ना मेन बॉर्डर से लेके सेल तक का, इसको इसको हम पैडिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके बीच में जो गैप रहेगा, ये सारा गैप पैडिंग होता है। अगर इसके नीचे भी होता है एक और सेल, तो ये भी, ये वाला डिस्टेंस जो है बीच का, इसको भी हम पैडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जो कंटेंट्स के बीच में सारा गैप रहेगा उसको पैडिंग बोलते हैं पूरा, ठीक है। तो अब मैंने पैडिंग को 20 पिक्सल सेट कर दिया। अब ये सारा अच्छा लगने लगेगा, मतलब सब में इक्वल इक्वल डिस्टेंस है। Okay, ma'am. Thank you. ओके, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन नीका। अच्छा, यहाँ तक तो सब सॉर्टेड है, आगे बढ़ जाते हैं। ओके, नाउ दिस इज द पैडिंग, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैडिंग। आपकी मेन बॉडी से बॉर्डर के बीच में जो गैप रहेगा, जो लाइट ब्लू है वो पूरा, दैट इज द पैडिंग, ठीक है। Yeah, I think there is no need to explain it now. Okay, great. अच्छा, अभी देखो सबके बीच में एकदम इक्वल इक्वल गैप आ गया। यहां से लेके यहां तक का जो गैप है, दैट इज इक्वल एवरीवेयर। ये पूरा यहां से लेके यहां तक वाला जो गैप है, मेन बॉर्डर से कंटेंट तक का गैप हर जगह में इक्वल आ गया। नाउ इट इज लुकिंग मच मोर सिमेट्रिकल। द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज होवर। होवर का मतलब मेरे को कौन बताएगा? कृतिका, why are you giving such a ghosty effect? ऐसा बार बार लाइट ब्लिंक हो रही है। मैम आई चलो, थिंक कौन बताएगा मुझे? दैट्स व्हाई। What is the meaning of hover? Anybody can tell me. Yeah. Just speak it now. You are on spotlight now. Okay. Ma'am, to move around something, like I'm hovering a mouse. Yeah, exactly. अबे माउस को क्या ऐसा घुमाते रहो पूरे स्क्रीन पे, कभी किसी आइकन पे ले गए, कभी किसी आइकन पे ले गए, क्लिक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ घुमा रहे हैं उसको इधर उधर, उसको होवरिंग कहते हैं, ठीक है। थैंक यू नीका, वेरी गुड। ओके, सो यू कैन सी इन द एनिमेशन ऑल्सो कि सिर्फ क्लिक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ले जा रहे हैं, और जैसे ही माउस किसी एक पर्टिकुलर इमेज पे जा रहा है, वो इमेज अपने आप को हाईलाइट करके दिखाती है।
फाइन, तो दिस इज होवरिंग। तो अलग अलग इफेक्ट्स वो दे सकती है। कोई अगर कोई टेक्स्ट लिखा है और मैं उसके ऊपर अपना माउस होवर करूं, तो समटाइम्स इट हैपेंस दैट इट चेंजेस इट्स कलर, समटाइम्स इट इज हाइलाइटेड, समटाइम्स इट इज एनक्लोज्ड विद इन अ बटन, कुछ भी हो सकता है। सो टुडे वी आर जस्ट लर्निंग कि किसी टेक्स्ट पे अगर हम माउस लेके जाएं तो वो अपना कलर कैसे चेंज करेगा। ओके तो हम क्या करते हैं, हेडर का कलर चेंज करते हैं। जो टेबल हेडर है ना ऊपर जिसमें 3 चीजें लिखी हैं, उसका कलर चेंज करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल डिफाइन टेबल हेडर, और टेबल हेडर पे करेंगे हम होवर, HOVER। ओके, वी आर होवरिंग ऑन द टेबल हेडर, और जब भी हम उसके ऊपर होवर करें तो करेंटली उसका कलर रेड है, बट एज वी होवर ओवर इट द कलर विल बी चेंज्ड टू पर्पल। ओके, पर्पल की जगह इसका कोड भी दे सकते थे हम यहाँ पे कलर बना के खुद से। फाइन, द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर डूइंग, टेबल का जो रो है उस रो पे अगर होवर करेंगे, रो पे होवर करेंगे तो वो रो अपने आप को कैसे हाईलाइट करेगी, वो अपना बैकग्राउंड कलर चेंज करके दिखाएगी। अपना बैकग्राउंड कलर अभी तो काफी ज्यादा व्हाइटिश स्काई ब्लूइश कुछ ऐसा ग्रे जैसा है ना, हल्का हल्का। नाउ इट विल चेंज इट्स कलर टू दिस पर्टिकुलर कोड E4DEFC। आई डो नॉट नो व्हाट इज दिस कलर, बट यू गाइस जस्ट ट्राई। बना के रखता हूँ। डन, एवरीबॉडी इज डन। Swastik done, Shaurya done, then Nika done, then Kritika done. Okay, great. अच्छा, once you are done this, तो देखो अभी अगर फॉर एग्जाम्पल ये टॉपिंग क्रीड के ऊपर अपना माउस लेके जाओगे तो कलर विल चेंज टू पर्पल, एंड सेम विद द रोज, रोज भी अपने आप को बैकग्राउंड कलर चेंज करके हाईलाइट कर रही होंगी। फाइन, सो नाउ यू नो कि अगर होवर किया किसी चीज के ऊपर तो उसके लिए चेंजेस लाना कितना ज्यादा सिंपल है। और भी चेंजेस ला सकते थे, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट का साइज चेंज कर दो या टेक्स्ट को बोल्ड कर दो, ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। दैट इज क्वाइट सिंपल। यस नीका, Can you show me how to operate on Sublime as the output is not coming at my side? okay, so is everybody facing that problem regarding the output? Swastik, just tell me your code is complete, output कितना आ रहा है? मैम आई एम चेकिंग इट मैम, 1 मिनट। या चेक करो सब लोग और मुझे बताओ कि इस पे कितना चलता है। मैम इट इज नॉट वर्किंग ऑन टेबल हेडर प्रॉपरली। जस्ट ट्राई टू प्रॉपरली, मतलब क्या आधा अधूरा काम कर रहा है कि मतलब एक हेडर हुआ है रेड, एक नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ है क्या? यस मैम। अच्छा, try to refresh your output window and then check it. ओके मैम। Yeah, और Nika, if I had to show you it on Sublime, तो for that I'll have to write down this entire code on Sublime, क्योंकि मेरे पास ये कोड कहीं लिखा हुआ नहीं है, इन स्लाइड्स में ये जो भी है। So if you just allow me, I'll show it to you on the next turn. Yeah, thank you so much. क्योंकि लिखना पड़ेगा पहले, अभी है नहीं मेरे पास कहीं पे। Yes, कृतिका, बोला बच्चा। कृतिका, you want to say something? मेरा हो रहा है। हो रहा है, पूरा हो रहा है। अरे भैया, कृतिका तो चल रहा है। मैम मैम वो पहले से उस कलर में आ चुका है मैम, जब माउस लेके जाता है तब चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, कोड एकदम सही से लिखा है, सिंटेक्स
टेबल हेडर कॉलन होवर और फिर उसके बाद डिक्लेरेशन शुरू. डिक्लेरेशन बंद भी किया ना? यस मैम. ठीक है. आई राइट डाउन दिस एंटायर कोड माई सेल्फ और मैं इसको repl.it पे भी चला के देखूंगी व्हाट इज द प्रॉब्लम और मैं इसको सबलाइन पे भी चला के देखूंगी. जस्ट गाइस जस्ट गिव मी सम टाइम फॉर दैट. ओके. क्योंकि जो तुमने पिछले 5 क्लासेस में किया डोंट एक्सपेक्ट मी कि वो मैं अभी अभी के अभी कर दूंगी. मुझे 1-2 दिन लग जाएगा. ओके. So now we'll learn about the internal CSS. अच्छा, external CSS. Next class में I'll show you the execution. शौर्या, पूरा execution में. Next to next क्यों? कल है क्या next? आज कौन सा डे? हाँ. कल है next class. कल करते हैं. कल करती हूँ. ठीक है. स्पॉटलाइट हटा दो. हाँ सॉरी. चलो, एक्सटर्नल CSS के बारे में हमने पढ़ा. बाहर वाली फाइल को HTML से लिंक कर दो. कोई एक्सटर्नल फाइल यूज हो रही है तो इट इज एक्सटर्नल CSS. अब क्या हो अगर मैं HTML के अंदर ही स्टाइलिंग करना शुरू कर दूं? CSS वाली फाइल में कुछ करूँ ही नहीं. अगर मैं HTML के अंदर ही स्टाइलिंग कर रही हूँ तो मैम अच्छा एक स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा और सबको क्लास और आईडी देनी पड़ेगी. हाँ फिर से बोलो. मैम तो स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा और सबको क्लास एंड आईडी देनी पड़ेगी. हाँ वेरी गुड. तो हमें स्टाइल का यूज करना पड़ेगा. और लेकिन कहने का मतलब ये था कि इसको हम इंटरनल CSS बोलेंगे. ओके. मैम. कृतिका वांट्स टू से. यस कृतिका. मैं अंडरस्टैंड हो गया था. अच्छा गलती हो गई थी. अच्छा ठीक है. तो इंटरनल CSS समझ आया. अब उसी HTML फाइल के अंदर मैंने स्टाइलिंग करनी चालू कर दी स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के. तो बस दैट इज नोन एज सिंपली इंटरनल CSS. ओके. लेकिन अच्छा इंटरनल CSS से क्या होगा? सिर्फ एक पेज में चेंजेस आएंगे या पूरी वेबसाइट में चेंजेस आने लगेंगे? मैम एक पेज पे. ओके आई गॉट वन आंसर. सोचो सोचो. अभी इंटरनल CSS हो रहा है. सिर्फ एक पेज में HTML वाले पेज में मैंने स्टाइलिंग की है. तो क्या उससे अगर मैंने होम पेज में स्टाइलिंग कर दी तो क्या उससे ऑर्डर्स वाले पेज में या डील्स वाले पेज में भी चेंजेस आएंगे? हाँ कि ना? मैम नो. यस कौन बोला बेटा? इधर आओ तुम जरा. कृतिका थी शायद ना. ये ना यस बोल के अपना कैमरा ऐसे ऐसे कर रही है. नहीं होगा. आपने सिर्फ HTML एक फाइल के अंदर आपने 3-4 फाइल्स बनाई है ना. एक index.html है, एक orders.html है, एक deals.html है. अगर आप इनमें से किसी एक फाइल को पकड़ के उसके अंदर यू स्टार्ट इनकोडिंग स्टाइलिंग तो वो चीज अगर मैं ऑर्डर्स के अंदर स्टाइल कर रही हूँ तो वो डील्स में नहीं जाएगा. ठीक है. वो सिर्फ ऑर्डर्स में ही रहेगा. दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज इंटरनल CSS. और अगर मैंने कोई एक सेपरेट फाइल बनाई और उस फाइल को मैंने हर एक पेज से कनेक्ट कर दिया देन इट विल हैपन कि हर एक पेज में चेंजेस आएंगे. समझ आई? यस मैम. ठीक है. और अभी एक और टाइप का CSS पढ़ना है. डोंट गेट टायर्ड. पहले हम देख लेते हैं इंटरनल CSS कैसे करनी है. इंटरनल CSS के लिए कुछ नहीं करना है. बहुत आसान है. एवरीबॉडी ओपन अप योर पेज order.html. पहले उसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग करके आते हैं हम लोग. order.html में जाके हेड के अंदर ही जहां पे सारे लिंक्स आपने प्रोवाइड किए हैं लिंक्स खत्म हो जाने के बाद यू विल ऐड वन मोर टैग ओवर देयर जिसका नाम है स्टाइल. उस टैग को स्टार्ट भी करो और उस टैग को एंड भी करो. सो मेक अ कंटेनर ऑफ स्टाइल टैग. Okay, so Astika has done it. Nika has done. Great. Shaurya has done. And Kritika done. ठीक है. ग्रेट. अब स्टाइल के अंदर क्या क्या लिखेंगे? जो order.html वाला पेज है इट कंटेन्स सम इनपुट बॉक्सेस. अब वो बॉक्सेस इतने ज्यादा सिंपल है बस इसे डब्बा बना के छोड़ दिया. बट आई डोंट वांट दैट. आई वांट इट टू बी समथिंग फैंसी. ठीक है. तो इनपुट
एट्रीब्यूट दिया मैंने, इसके अंदर अगेन आई एम डिक्लेयरिंग द सेम वे आई डिक्लेयर इन दी CSS। उसका हाइट मैंने सेट कर दिया 30 पिक्सल्स, उसका विड्थ सेट कर दिया 200 पिक्सल्स, और फाइनली उसका बॉर्डर का रेडियस। अब तुम बोलो कि वो तो ऐसा है रेक्टेंगल, उसमें कहां से रेडियस आ गया? So if I'm setting up the radius, it means that I'm creating the circular edges for that box. ठीक है, उसके सर्कुलर एजेस हो जाएंगे। अभी उसका रेडियस 10 पिक्सल्स कर दिया तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ऐसे एजेस हो जाएंगे। अब उसके एजेस रेक्टेंगुलर नहीं है, ऐसा स्ट्रेट नहीं है, थोड़े से सर्कुलर हो गया बिकॉज आप एडेड द रेडियस टू इट। और इस 10 पिक्सल को इंक्रीज करोगे तो वो थोड़े और ज्यादा सर्कुलर लगेंगे। 30 width 210। Acha, whenever I explain you, so do you guys come to the classroom to listen to me or you just stay on Ripple.it? Okay, you come only when I ask you to come. Just make it a habit to come back to the classroom every time you complete one task, okay? So it will be much more easier. मैम जो आपने इनपुट क्लास बनाई है मैम, वो वहाँ पे डालनी भी तो होगी जहाँ पे हमने करना है ये सारा कुछ। डालना होगा, कहाँ डालना होगा? ये मैम ऑर्डर मैम वाले टैग के में, नीचे ना, मैम टैग में क्लास डालनी होगी। टैग में क्लास डालनी। हाँ बच्चा, तुम क्लास में आके देखोगे तो पता चलेगा ना। मैंने बताया ना, स्टाइल टैग तुमने डिक्लेयर किया, उसके बाद जैसे हम CSS में कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे होगा। पहले इनपुट लिखेंगे क्योंकि हमें इनपुट में चेंजेस लाने हैं, और उसके बाद उसको डिक्लेरेशन करके, दैट मीन्स द ब्रैकेट्स ओपन करके पूरे उसके अंदर एट्रीब्यूट्स लिख दो। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू पुट द सेमीकोलंस आफ्टर यू डिक्लेयर एवरी एट्रीब्यूट। Okay, Kritika has done. मैम डन। Swastika has done. Yes. Waiting for Shaurya and Nika. अच्छा, Shaurya is also done. Nika is also done. Great. तो अभी आपका आउटपुट हो जाएगा कुछ ऐसा, क्योंकि हमने जो है इनपुट बॉक्सेस को कर दिया है चेंज। फाइन। अच्छा, विल एनीबडी टेल मी कि यहाँ पे ये डॉटेड लाइंस क्यों आ रहे हैं? हमने तो नहीं बोला audit.html में डॉटेड लाइंस लाने के लिए। मैम क्योंकि हमने स्टाइल एक शीट एक में एक सारा एक कुछ एक क्रेडिट एक डाला एक हुआ है। एक 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 शौर्य and Swastik. पहले शौर्य, because he switched on his mic before Swastik. Yes. मैम सिस्टम का मन कर रहा होगा डॉटेड लाइन डालने के लिए। सॉरी। मैम Yes, Swastik. मैम स्टाइल शीट में जो हमने पहली बार बनाई थी उसका लिंक हमने डाला था, उसमें दिया हुआ था टेबल का ये डैश लाइन करने के लिए। Yes, very good. तो हमने ऑलरेडी एक्सटर्नल CSS अप्लाई कर दिया था इस पे, इसलिए इसमें डॉटेड लाइंस आ रहे हैं। फाइन, आई टोल्ड यू कि एक्सटर्नल CSS कर देने से हर एक वेब पेज पे ये आ जाएगा। Don't worry if it is not running right now. Just make those concepts firm in your mind. I'll show you the entire implementation. Don't worry. Okay. अभी क्या करना है? Everybody come to the classroom. Fine. अभी हम लोग जितनी भी स्टाइलिंग करेंगे वो सब स्टाइल के अंदर ही करेंगे, स्टाइल से बाहर जाके कुछ करेंगे वो एक्सेप्ट नहीं होगा। फाइन। अब हमने इनपुट में तो डाल दिया है whatever the changes we needed to put in the input. Now I just want to make some changes within the table. टेबल डेटा और टेबल हेडर। आई वांट कि इन सब का जो बॉर्डर है वो 2 पिक्सल का हो, एंड दैट टू सॉलिड ब्लैक, डॉटेड ब्लैक नहीं, सॉलिड ब्लैक। implement it.
Kritika has done. Swastik has done. Shaurya has done. Great. Waiting for Nika. Okay, Nika is also done. Great. अच्छा, मैंने पहले तो बोल दिया था कि डॉटेड लाइंस होंगी, अब मैंने बोल दिया कि सॉलिड लाइंस होंगी, तो फाइनली आउटपुट में क्या आएगा, डॉटेड या फिर सॉलिड? सॉरी, हाँ, डॉटेड या सॉलिड? मैम सॉलिड। ओके, स्वास्तिक इज सेइंग सॉलिड. ऐसा क्यों है स्वास्तिक कि सॉलिड आएगा? मैम बिकॉज वी हैव, मैम वहाँ पे चेंज कर दिया हमने स्टाइल शीट तो में। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ अगर मैं बाद में जाके एक्सटर्नल शीट में फिर से डॉटेड डाल दूं, तो क्या फिर से डॉटेड आने लगेगा? मैम इंटरनल ज्यादा मायने रखती है। Yes, exactly. So internal CSS has got much more priority than the external CSS. एक्सटर्नल वाले से मतलब कोई बाहर का आदमी होगा या कोई फैमिली वाला आदमी होगा, ज्यादा बात तो फैमिली वाले की मानोगे ना. सो अब HTML फाइल के अंदर ही जो चीज है ना, सॉरी सिंह, नो, फैमिली वाले की बात नहीं मानते ना. ठीक है बेटा, समझ गए. ठीक है. हाँ, अच्छा, ओके. अच्छा, नीका एंड कृतिका, आर यू गेटिंग इट? एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या क्या फर्क होते हैं? हाँ, जहां पे समझ नहीं है जस्ट स्टॉप मी देन एंड देयर. ये स्वास्तिक को तो आता है, इसको बोलने दो. फाइन, तुम लोग को समझ आना चाहिए. ओके नीका एंड कृतिका, या ग्रेट. तो ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? अच्छा, शौर्य कह रहे मेरा नाम नहीं लिया. ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, इंटरनल सीएसएस या फिर एक्सटर्नल सीएसएस? यस, वेरी गुड कृतिका. कृतिका सिंह इंटरनल, वेरी गुड. चलो, एक और तरह का सीएसएस होता है जिसे हम बोलते हैं इनलाइन सीएसएस. इनलाइन का मतलब होता है अगर मैं जहां पे मैंने टेबल बॉर्डर दिया था, अगर मैं वहीं पे जाके बोल दूं कि भैया तुमको सॉलिड होना है, अब एक्सटर्नल में कुछ भी हो, इंटरनल में कुछ भी हो, नहीं सुनेगा मेरी बात. वो वही सुनेगा जो इन लाइन में होगा, मतलब एक पर्टिकुलर लाइन में जो लिख दिया जाएगा. फाइन. ओके, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इन लाइन की होती है, फिर सेकंड नंबर पे आता है हमारा सीएसएस इंटरनल, एंड फाइनली इट इज एक्सटर्नल सीएसएस. सबसे कम प्रायोरिटी एक्सटर्नल सीएसएस की होती है. फाइन. अच्छा, जैसे कि यहाँ पे है ना, ये मुझे ये इसका जवाब दो तुम थोड़ा सा. इनलाइन सीएसएस कहती है कि हेडिंग 1 का कलर ग्रीन रहेगा, और इंटरनल सीएसएस कहती है कि हेडिंग 1 का कलर रेड रहेगा, और एक्सटर्नल सीएसएस कहती है कि हेडिंग 1 का कलर ब्लू रहेगा. तो व्हाट विल बी द फाइनल हेडिंग 1? मैम ग्रीन. हाँ, स्वास्तिक, जस्ट कीप योर माउथ शट नाउ. ओके, इनलाइन सीएसएस ने बोला कि हेडिंग 1 का कलर होना चाहिए हरा, यानी कि ग्रीन. वहीं फिर इंटरनल सीएसएस आई, उसने बोला नहीं भैया, हेडिंग 1 का कलर तो रेड ही होना चाहिए. फिर आई एक्सटर्नल सीएसएस, कह रही है नहीं, हमारा फेवरेट कलर ब्लू है, हम तो हेडिंग 1 का कलर रखेंगे ब्लू. अब हेडिंग 1 कंफ्यूज है, मैं किसकी बात मानूं? तो वो, ओके, कृतिका इज सेइंग ग्रीन, सो आई हैव गॉट टू आंसर्स. ओके, व्हाट इज योर आंसर नीका? ओके, एंड शौर्या? शौर्या इज हेडिंग 1, ही इज गेटिंग कंफ्यूज्ड कौन सा कलर लूं मैं. नहीं शौर्या, यू हैव टू सिलेक्ट वन कलर. अब बताओ कि तुम किसको ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, इनलाइन को, इंटरनल को, या एक्सटर्नल को? मैम इन लाइन. नहीं बोल रहा, मैं दूसरों की लड़ाई में नहीं पड़ता. इंटरनल. शौर्य, आई डू नॉट नो कि तुम ये जानबूझ के कर रहे हो या फिर ये ज्यादा मस्ती सूझ रही है. तुमको क्लास खत्म नहीं करूंगी अगर तुम ये सब करते रहोगे तो. अच्छा अच्छा मैम, ऐसी बात है तो हाँ. मैम इनलाइन. हाँ, अब ठीक है. चलो, तुमको ऐसी ना बता के रखना पड़ेगा कि क्लास लंबी खिंच सकती है तुम्हारी वजह से. अब आइए थोड़ी थोड़ी सी. मैम कोई बात नहीं मैम, लंबी खींच दो क्लास, कोई बात नहीं.
तुम लोग फ्री होगे ना, मैं नहीं हूँ। चलो, now CSS selectors क्या होते हैं? CSS selectors are used to find or select the HTML elements you want to style. मैम मतलब ये जो स्लाइड लोड प्रायोरिटीज नहीं है हो ना, रही है। लोड नहीं हो रही है। नो मैम, मैम ये कर रहे लोडिंग लिखा आ रहा है अभी। 3 डॉट्स ब्लिंक कर रही हैं, 3 डॉट्स। अच्छा, तो तुम्हारी साइड से प्रॉब्लम है, मेरी साइड तो खुल चुका है। बाकी सबका खुला ये CSS प्रायोरिटीज वाला? कृतिका का हो गया, नीका का भी हो गया, शौर्य का भी हो गया। अच्छा स्वास्थ्य, कोई बात नहीं, सिर्फ सुन लो, सुनने वाली चीज है। जो CSS सिलेक्टर्स होते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं प्रायोरिटीज को। ये प्रायोरिटीज कौन डिसाइड करते हैं? सिलेक्टर्स यूज होता है। सिलेक्टर्स दो चीजों का यूज करते हैं, एक तो आईडी सिलेक्टर और दूसरा होता है क्लास सिलेक्टर। जैसे कि इनपुट एक क्लास है, लेकिन किसी की आईडी जैसे कि बटन है, तो बटन उसकी आईडी हो गया ना, उसका आइडेंटिफिकेशन है कि वो बटन है। तो ऐसे क्लास और आईडीज दोनों डिफरेंट चीजें होती है, इन दोनों के बेसिस पे प्रायोरिटीज को डिसाइड किया जाता है। सो नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज, हम आईडी सिलेक्टर को सेट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर दैट now we'll see how to use CSS ID selectors to specify CSS property to HTML tags. Now what you have to do, हेलो। इनपुट आईडी इक्वल टू बटन 1 है ना, तो वहां पे उसकी आईडी सेट करो उस बटन की। तब भी तक हमने क्या बोला था? इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन एंड वैल्यू इज इक्वल टू ऑर्डर नाउ। इसके अलावा हमने कुछ नहीं लिखा था। अब उस बटन की हम एक आईडी सेट कर रहे हैं, मतलब वो बटन अपने ऑर्डर नाउ के नाम से नहीं जाना जाएगा। ऑर्डर नाउ तो दैट इज द वैल्यू दैट इज रिटन ओवर दैट बटन, लेकिन उसकी आईडी क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे है, वो जाना कैसे जाएगा? उसका आइडेंटिफिकेशन मैंने लिख दिया BTN1 या कुछ भी आप लोग डाल सकते हैं, बट जस्ट रिमेंबर कि आपने क्या आईडी डाला था अपने बटन का। मैम Fine. लिखना क्या है मैम? स्लाइड लोड नहीं हो रही है। स्वास्तिक का स्लाइड अभी तक रोल नहीं। ओके स्वास्तिक, डू यू रिमेंबर आपने एक बटन बनाया था जिसका नाम था ऑर्डर नाउ? यस मैम। ओके, वो बटन दिख रहा है कहीं? मतलब कोड में देखो, कोड में यस मैम। बहुत नीचे था, 60s की लाइन में जाके। यस मैम। मैम दिखा? यस मैम। यस मैम। हाँ, वहां पे आपने ये लिखा था ना, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू इज ma'am. इक्वल टू ऑर्डर नाउ, है ना। बस ऐसे ही एक एट्रीब्यूट होता है आईडी। अब हमें उसका आईडी भी सेट करना है, तो कुछ नहीं करना है। इनपुट टाइप, इनपुट और टाइप के बीच में स्पेस दे दो, या कहीं भी नॉर्मल एट्रीब्यूट है कहीं भी लिख दो। तो आपको लिखना है आईडी इज इक्वल टू BTN1. इन्वर्टेड कॉमास और उसके अंदर BTN1 या बटन 1, कुछ भी लिखो, आईडी अपने आप से बना दो। Okay मैम, I'm done. Okay, done. Everybody done. Okay. मैम slide loaded. Oh, congrats, Astik. अच्छा, अब हमने इसकी आई, नो नॉट येट, नॉट येट, स्टिल टू गो। बस बस दो तीन चीजें सीख लो फिर भाग जाओ, और फटाफट सीख लो। देखो अब क्या हो रहा है, बटन 1 को हमने आईडी क्यों दी? अगर मुझे इस बटन में कोई भी चेंजेस करने हैं, तो मैं ये थोड़ी ना बोलूंगी कि चेंज करो ऑर्डर नाउ में, या मतलब इस बटन को मैं किस नाम से बुलाऊं? ऑर्डर नाउ तो इसके अंदर की वैल्यू हो गई। BTN1. हाँ, अब इस बटन को इसके नाम से बुलाया जाएगा, और उसका नाम यानी कि उसकी आईडी हमने रख दी है BTN1, ठीक है। तो जहां पे अभी आप लोगों ने टेबल हेडर, टेबल डेटा और टेबल को चेंज किया था, जहां पे उसका बॉर्डर को 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक डाला था, जस्ट उसके नीचे आ जाओ, वहां पे लिखो BTN1 एज इन योर एलिमेंट, और उसके बाद डिक्लेरेशन दो।
Okay, Nika has done. और जो उसका डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन में you have to declare the font size to be 10 pixels. Font weight is equal to bold, not equal to colon. Then background color to be hashtag 99FF33, and then margin to be 10 pixel. Once you are done it, let me know. Swastika is done. Nika, who's at your back? Dancing at. Okay. Yeah, I know all these brothers are like this only. अच्छा, अभी जो तुमने बटन का आईडी लिख के उसके अंदर का स्पेसिफिकेशन दिया है ना, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि जब भी हम कोई क्लास सिलेक्टर यानी कि किसी चीज की आईडी लिखते हैं तो उसके सामने हैशटैग लगाना जरूरी होता है। तो बटन 1 जहां लिखा है, बटन 1 से पहले मतलब बी से पहले हैशटैग लगा दो। अच्छा, कृतिका हैज डन इट, ग्रेट। मैम जहाँ पे आईडी टैग लगाया वहां पे लगाना है हैश आईडी ना ना ना, नॉट दैट जहां पे उसका नाम लिखा है ना, अभी ऊपर में आके एट्रीब्यूट्स कहीं डिक्लेयर किए ना उसके। ओके मैम। हाँ, वहां पे BTN बाय मिस्टेक आई डन दिस आईडी टू कैंसिल बटन। तब ना अगर तुम उसके नाम में भी हैशटैग लगा दोगे तब 2 बार हैशटैग लगाना पड़ेगा, एक बार क्लास सिलेक्टर का और एक बार उसका खुद के नाम का। ओके मैम। मैम डन। Swastika has done, I know. Shaurya done. Waiting for Nika and Kritika. Kritika done. Nika done. Very good. Okay. अभी हम देखें भैया इसको, ये आईडी हमने इसकी सिलेक्ट कर लिया और इसमें हमने जो भी कलर्स और फॉन्ट और ये सब बैकग्राउंड कलर सब चीजें दी थी ना, एवरीथिंग हैज बीन चेंज्ड और ये ऑर्डर नाउ अब अलग दिखने लगा है पहले से। फाइन। The next thing that we have to do is the same way, ये जो दूसरा वाला बटन था कैंसिल, इसके लिए भी सेम चीज करनी है, जस्ट गिव इट सम अदर आईडी जैसे कि बटन 2 और एनीथिंग एल्स। आईडी इंक्लूड करने का सिर्फ इतना सा मोटिव था कि हम इसे किसी तरह सिलेक्ट कर सके। Fine, you have to do the same thing for the cancel button also. Swastika has done it. चलो जल्दी 1 मिनट में मुझे क्लास एंड करना है अभी। Okay, everybody has done it. Great. Fine. Similarly, button 2 के लिए everybody has done it, right? Okay. अब बटन 2 भी सेट हो गया है। Finally, ओके, नाउ यू गो टू index.html। index.html में जाके वहां पे आपने जो भी अपने हाइपर रेफरेंसेस दिए हुए थे, आई गेस ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वहां पे हमने डील्स और ऑर्डर वाले पेज का रेफरेंस दे दिया था ना HTML वाले में। फाइन, तो एवरीथिंग इज डन नाउ। Everything is done. Yes. Now you can just summarize it from your inline CSS, internal CSS and external CSS. इसके अलावा कोई और तरह का CSS नहीं होता, क्योंकि लाइन से अंदर घुस के अब कोई वर्ड CSS तो होगा नहीं। So it is inline, internal and external. Inline CSS means the changes made to one particular element in a web page. किसी एक एलिमेंट में चेंज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल किसी बटन को चेंज कर दिया, कुछ भी पूरे वेब पेज पे अप्लाई नहीं होता। इंटरनल का मतलब है the changes made to one particular web page, एक एलिमेंट पे नहीं पूरे वेब पेज पे। और फाइनली एक्सटर्नल पूरे वेबसाइट के लिए। ग्रेट। ओके मैम। Yes, now this is some task for you, just do it quickly. I am used to style a particular web page,
then I am used to enhance the look. Ma'am, my answers are corrected. First is internal CSS, second is CSS, third is external CSS, fourth is inline CSS, and fifth is selector. Okay, time's up, guys. You can just see your answers from here, and let me see how many of you have done it correctly. Okay, everybody has got little bit of wrong answers. छूट गया था क्या तुम लोग का? कंप्लीट नहीं कर पाए थे क्या? Ma'am, my is all correct. Sure. Swastika, I know yours are correct. Very good. चलो, ये आदि आंसर्स. जिसका छूटा छूटा कोई बात नहीं. Here are the answers. You can just check them. Particular web page को स्टाइल करने के लिए it is internal CSS. लुक्स को enhance करने के लिए CSS, वही तो पढ़ रहे थे आज. फिर अगर पूरे वेबसाइट में चेंजेस लाना है तो एक्सटर्नल CSS. सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी? इनलाइन CSS की. और ये तो इसके नाम में था, आई एम यूज टू सिलेक्ट द एलिमेंट यू आर स्टाइलिंग. सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्टर का यूज करेंगे ना. और सिलेक्टर दो तरह के होते हैं, आईडी सिलेक्टर है क्लास सिलेक्टर. आज हमने आईडी सिलेक्टर पढ़ लिया. चलो, नाउ दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास गाइस. कोई जाएगा नहीं मेरे बिना. नो, फर्स्ट आई विल लीव. Okay, ma'am. Okay, bye bye. Take Bye, care of ma'am. yourself. Stay away from corona. Yeah. Bye bye. Bye bye bye. गाइस, जैसा कि आपने देख ही लिया है कि हमारी कोडिंग क्लास का सफर कितना बढ़िया रहा. एक आधी प्रॉब्लम भी आ गई थी नेटवर्क इशू के कारण, तो कोई बात नहीं, हमने वो भी सॉल्व कर ली थी रीलोड करके पेज को. और जो कोड जो वेबसाइट में वो दिखा रहा था कलर्स के लिए, कलर्स को मिक्स करके उसका कोड नीचे दे रहा था, उस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. और ये जो मेरी क्लास थी वो लीडो लर्निंग के साथ हो रही थी, lidolearning.com. ये मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, किसी भी वेबसाइट को ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से दे रहा था. वैसे ही आज के लिए मैंने सोचा कि आपको कोडिंग क्लास का टूर भी करा दे, लीडो क्लास की कोडिंग कैसे होती है. ये आप इसको रिव्यू भी समझ सकते हैं, रिव्यू तो बहुत बढ़िया रहा वैसे तो. ओके, तो हम अगली वीडियो तक बाय बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग.